صدر ٹرمپ نے ایران پر تمام آپشنز کھلے رکھے ہیں۔ امریکی مندوب کا سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کا خطاب۔ کہا ایران مذہبی نظریات کے نام پر امریکہ اور اسرائیل کے لیے خطرہ ہے۔ ایران دہشت گردی اسپانسر کرنے والا ملک ہے۔ ایرانی رجیم کو صورتحال کا سزا اور قرار دیا جائے گا۔ ایران پر صدر ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کی سازش کا بھی الزام۔ مائک والز نے مزید کہا بہت ہو گیا، ایرانی حکومت کے مظالم ختم کرنا ہوں گے۔ صدر ٹرمپ باتوں نہیں ایکشن والے شخص ہیں۔ ایران مطلب سمجھ لے، قتل عام رکنا چاہیے۔ ایران کا طرز عمل مذاکرات کے برعکس ہے۔ برطانوی مندوب کا کہنا تھا ایران میں ہزاروں افراد ہلاک اور گرفتاریاں تشویشناک ہیں۔ ایران اپنی پالیسی بدلے ورنہ مزید پابندیاں عائد ہوں گی۔ فرانس کا ایران سے تمام گرفتار مظاہرین کو رہا کرنے کا مطالبہ۔ ایران کشیدگی چاہتا ہے نہ ہی تصادم، جوہریت کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ سلامتی کونسل اجلاس سے ایرانی مندوب کا خطاب۔ کہا ایران کے معاملے پر امریکہ کا سلامتی کونسل کا اجلاس بلانا شرمناک ہے۔ ایران نے داعش طرز کی دہشت گردی کا سامنا کیا۔ امیر سعید نے امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی حکومتوں کو رجیم کہا۔ بولے سول سوسائٹی کے نام پر امریکی اور اسرائیلی ایجنڈا پیش کیا گیا۔ امریکی مندوب نے جھوٹ اور غلط بیانی کا سہارا لیا۔ ایران میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھا کر مداخلت کا بہانہ تلاش کرنے کی کوشش کی گئی۔ معاملے کو سفارتی طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ بیرونی مداخلت اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ہے۔ مستحکم ایران پاکستان اور خطے کے امن کے لیے ضروری ہے۔ تمام تنازعات کے پرامن حل پر یقین رکھتے ہیں۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے اجلاس میں خطاب۔ کہا ایران اور خطے کی صورتحال پر تشویش ہے۔ عالمی قوانین کا خیال رکھتے ہوئے تمام فریقین صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ مسائل کے حل کے لیے سفارتکاری اور مذاکرات کو ترجیح دی جائے۔ طاقت یا دھمکی صورتحال کو مزید خراب کر سکتی ہے۔ ایران میں حالات جلد معمول پر واپس آنے کی امید ہے۔ ایرانی عوام اور قیادت چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکہ ایران سے متعلق خوف و ہراس پھیلا رہا ہے۔ روسی مندوب کی سلامتی کونسل اجلاس میں امریکہ پر تنقید۔ کہا ایران میں بیرونی مداخلت عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ بیرونی قوتوں کا مقصد اسلامی جمہوریہ ایران کو ختم کرنا ہے۔ ایران کی سالمیت کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ روس کی مسائل کے پرامن حل میں تعاون کی پیشکش۔ چینی مندوب کا بھی ایران کی صورتحال پر دو ٹوک موقف۔ کہا امریکہ ایران پر طاقت کے استعمال کی کوشش فوری ترک کرے۔ امریکی دھمکیوں سے مشرق وسطیٰ میں نئی جنگ کے بادل ہیں۔ چین کسی بھی ملک کی سالمیت کے خلاف طاقت کا مخالف ہے۔ مسائل کا حل UN چارٹر اور عالمی قوانین کے مطابق ہو۔ ایران کو درپیش مسائل سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری مدد کرے۔ چینی وزیر خارجہ کا ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وانگ ای کا کہنا تھا یقین ہے ایرانی حکومت اور عوام متحد رہ کر مشکلات پر قابو پا لیں گے۔ امریکہ ایران کشیدگی عرب ممالک کی کوششیں رنگ لانے لگیں۔ سعودی عرب، قطر اور عمان نے امریکہ کو ایران پر فوری حملہ نہ کرنے پر آمادہ کر لیا۔ صدر ٹرمپ ایران کو ایک موقع دینے پر رضامند۔ آخری لمحوں میں ایران پر حملے کا فیصلہ تبدیل کیا۔ فرانسیسی خبر ایجنسی کا دعویٰ۔ کہا سعودی حکام نے بتایا تینوں اسلامی ممالک نے ممکنہ حملہ رکوانے کے لیے آخری لمحات میں بھرپور سفارتی کوششیں کی۔ ایرانی وزیر خارجہ کی سعودی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو۔ کہا علاقائی ممالک کے اندرونی معاملات میں غیر ملکی مداخلت کی عالمی سطح پر مذمت ضروری ہے۔ ترکیہ کی بھی ایران پر ممکنہ امریکی حملے کی مخالفت۔ مذاکرات پر زور۔ ایران میں بہت سی جانیں بچائیں۔ ایران نے کہا وہ مظاہرین کو پھانسی نہیں دے گا۔ ایران سے کشیدگی میں کمی کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اہم بیان۔ کیا آپ اب بھی ایران پر حملہ کریں گے؟ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے سوال پر بولے میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کہتی ہیں ایران میں 800 پھانسیوں پر عمل درآمد روک دیا گیا۔ قتل عام جاری رہا تو سنگین نتائج ہوں گے۔ صدر ٹرمپ ایران کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایران کے معاملے پر تمام آپشنز بدستور کھلے ہیں۔ It was a brief statement by the US State Department on their social media account about the internal review of processing immigrant visas. So we are in touch with the US authorities to ascertain further details and hope that the routine processing of immigrant visa
will resume soon. Our Deputy Prime Minister, Foreign Minister also spoke with the Foreign Minister of Iran, Sayyid Abbas Araghchi, and discussed current developments in Iran. He reaffirmed the importance of sustained dialogue and engagement, and both sides agreed to continue to maintain close contacts. अमरीकी इमिग्रेंट वीजा पाबंदियों और ईरान से तिजारत पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने आ गया। पाकिस्तान ईरान के साथ तिजारत के मामले पर अमेरिका से बाज़ाब्ता राब्ता करेगा। इमिग्रेंट वीज़ा पाबंदियों पर अमेरिका से राब्ते में है। अमेरिका अपनी वीज़ा पॉलिसी पर नज़रसानी कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा, उम्मीद है अमेरिका जल्द पाकिस्तान के लिए वीज़े बहाल करेगा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और ईरानी हम मनसब के दरमियान भी राब्ता हुआ। ईरान, मशरिक़ वस्ता और ख़त्े की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। हम अमरीकी हुकाम के साथ भी राब्ते में हैं। पाक ईरान तिजारत आलमी तिजारती कवानीन के तहत हो रही है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारती हजम $3 अरब से ज़ायद है। दोनों ममालिक के दरमियान गुज़श्ता सालों में तिजारती हजम में इजाफा हुआ। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर, अंदरून और बैरून मुल्क कई परवाजें ताखीर का शिकार। मोटरवे M1 पेशावर से सवाबी तक बंद कर दी गई। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद, M4 पिंडी भटियां से मुल्तान, M5 पर मुल्तान से जाहिद पीर तक गाड़ियों का दाखिला ममनुआ। M11 पर लाहौर से समड़ियाल तक ट्रैफिक एंट्री बंद। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान और कश्मीर में आज बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी भी होगी। लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खदशा। कराची में ट्रैफिक हादसात में इजाफा। सुपर हाईवे के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने जाँ बहक अफराद की लाशें और जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक और जख्मी शख्स की शनाख्त नहीं हो सकी। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ ने तक़रीब से खिताब करते हुए कहा, आवाम की खिदमत करनी है तो हमा वक्त तैयार रहना होगा। पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ के लिए मास्टर ट्रेनर्स ने आज़रबाईजान से तरबियत हासिल की। मरकज़ में नादरा, फॉरेन ऑफिस, पुलिस, FBI और दीगर इदारों की खिदमात मुहैया होंगी। जदीद टेक्नोलॉजी आज़रबाईजान की जानिब से हमारे लिए तोहफा है। दोस्त मुल्क के गैर मामूली ताउन पर शुक्रगुजार है। मुज़फ़्फ़राबाद, गिलगित में भी आसान खिदमत मरकज़ कायम करना है। वज़ीर-ए-आज़म से आज़रबाईजान के वफ़द की मुलाकात। इस्लामाबाद में आसान खिदमत मरकज़ के बारे में ब्रीफिंग की गई। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक पंजाब हुकूमत का अहम इजलास। नज़रसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान के फ्रेमवर्क पर तफसीली गौर। दहशतगर्दी के गैर अस्करी मुहरिकात पर लिए गए इक़दामात पर जामिया ब्रीफिंग। सियासी अदम इस्तेहकाम और सियासी तकसीम के अमन-ओ-अमान पर असरात का जायजा। एहतजाजी सियासत और रियासत मुखालिफ बयानिए से निपटने के लिए पॉलिसी ऑपरेशन पर गौर। हुकूमत के साबिका सिक्योरिटी फैसलों पर मौसर अमल दरामद तेज करने की हिदायत। मजहबी और समाजी बयानिए में नफरत अंगेज और फ़िरका वराना मवाद पर इक़दामात का जायजा। नौजवानों में इत्तेहाद पसंदी पर कंट्रोल के लिए बेरोजगारी का खात्मा जरूरी करार। जनूबी पंजाब के पसमानदा इस्लाम में डेवलपमेंट फंड्स बढ़ाने की हिदायत। ज़िला अमन कमेटी की असर नौ तश्कील और फ़आलियत पर अमल दरामद का हुक्म। बिलावल भुट्टो को सिंध में सेहत के शोबे में नुमाया कामयाबियों पर फख्र। पीपल्स पार्टी ने सेहत के शोबे में बेहतरीन इक़दाम किए। तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, सूबे में आलमी मयार की सेहत में सहूलियात मुफ्त की जा रही हैं। सिंध में पहली बार कैंसर के इलाज के लिए साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई। सिंध हुकूमत कैंसर का महंगा तरीन इलाज मुफ्त मुहैया कर रही है। एक साल में NICVD से 29 लाख मरीज इलाज करवा चुके हैं। सिंध हुकूमत ने 2025 तक सूबे में 30 यूनिवर्सिटीज बनाई। 2022 के सैलाब से सिंध में 21 लाख घर मुतासर हुए। सैलाब से तकरीबन 50 लाख एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर हुआ। सूबे में छोटे किसानों को बाइख्तियार बनाया जा रहा है। सिंध में ज़राई शुबाजात की जानिब गामजन है। बिलावल भुट्टो से ब्रितानी हाई कमिश्नर जेन मैरिट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत आलमी अमूर पर बातचीत। पाक अमरीका मुश्तरका फौजी मश्क इंस्पायर्ड गैमिड 2026 का इनेकाद। मश्क में इंसदाद दहशतगर्दी पर तवज्जो मरकूज।
ISPR के मुताबिक 8 जनवरी को शुरू होने वाली मशक आज इख्तिताम पसीर होगी। कौमी इंसदाद और दहशतगर्दी मरकज बिबिन में इनेकाद हुआ। अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर, अमरीकी अस्करी हुकाम की शिरकत, कोर कमांडर रावलपिंडी की भी तकरीब में शिरकत। मेहमानों को मशक के दायरा कार, मकासद और तरीक़ाकार के बारे में ब्रीफिंग दी गई। दोनों अफवाज के दस्तों का आला सतह की पेशा वराना महारत और सलाहियत का मुजाहिरा। विजिटर्स के तकरीब में शरीक मेहमानों ने दस्तों की महारत को सराहा। मशक का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी के तजर्बात के तबादला करना, तरीक़ाकार को बेहतर बनाना और दो तरफा फौजी ताउन को बढ़ाना है। इंस्पायर्ड गैम्बिट 1995 से जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयां। भारतीय प्रॉक्सी फितनुल खारिज के 13 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। बनू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में 8 फारिश हलाक। कुरम में दूसरा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 5 फारिश मारे गए। इलाके में मजीद अखबारिश के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन कहा। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान की शहीद मेजर अनवर काकड़ की रिहाइश का आमद। मोहसिन नकवी और सरफराज भुगती की शहीद मेजर अनवर काकड़ की वालिदा, भाइयों और बेटों से मुलाकात। हमदर्दी और ताज़ीयत का इजहार। दोनों ने जामे शहादत नोश करने वाले मेजर अनवर काकड़ की असीम कुर्बानी को जबरदस्त अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया। शहीद मेजर अनवर काकड़ के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई। मोहसिन नकवी और सरफराज भुगती ने शहीद मेजर अनवर काकड़ की वालिदा के बुलंद हौसले को सराहा। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम को पायदार तरक्की और रोजगार में बदलने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और आलमी बैंक के दरमियान सरमायाकारी और इस्लाहात के बारे में मुशावरत। वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर की वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात। निजी सरमायाकारी में तेजी लाने के लिए जामिया फ्रेमवर्क पर गौर। टैक्स, महसूलात और सरकारी इदारों के इस्लाहात के बारे में पेशरफ्त का जायजा। वर्ल्ड बैंक की नताइज पर मबनी इस्लाहाती हुकूमती अमली की तजवीज़। हुकूमत का टैरिफ इस्लाहात, SOV गवर्नेंस और शफाफियत पर जोर। शहर इक़्तिदार में गाड़ियों पर एमटैग की तनसीब के लिए डेडलाइन खत्म। आज से इस्लामाबाद में एमटैग के बगैर गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज होगा। महकमा एक्साइज का इस्लामाबाद में 2 मुकामात पर एमटैग सर्विस 24 घंटे फराहमी का फैसला। अब तक 7 लाख के करीब गाड़ियों पर एमटैग लगाए गए। म्यांमार में मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान भारतीय केमिकल्स बरामद। म्यांमार सिक्योरिटी फोर्सेस ने 9 से 11 जनवरी तक मुनशियात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान हीरोइन, आइस और भारी मिकदार में कीमे अज्जा बरामद किए गए। तबाह किए गए ड्रग मैन्युफैक्चरिंग मराकज़ को गोल्डन ट्राई एंगल के आर्मी मुनशियात सप्लाई चेन का अहम हिस्सा करार दिया गया। बरामद होने वाले केमिकल अज्जा पर वाज़ेह तौर पर मेड इन इंडिया दर्ज था। अमन के लिए तैयार हैं यूक्रेन, अमन की राह में कभी रुकावट नहीं बना। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का वीडियो बयान। कहा, यूक्रेन ने हमेशा अमन की हिमायत की। अमेरिका के साथ सफारती कोशिशों पर बात हुई। नेटो सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। अमन के लिए सफारतकारी का रास्ता अपनाना होगा। रूस ने जासूसी के इल्जाम में बरतानवी सफारतकार को मुल्क बदर कर दिया। बरतानिया ने इल्जामात बेबुनियाद और रूसी इक़दाम को मायूसी का नतीजा करार दे दिया। रूसी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है बरतानवी सफारतकार खुफिया इदारे से वाबस्ता था। बरतानिया ने कशीदगी बढ़ाई तो सख्त जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी शहर मिनियापोलिस में इमिग्रेशन एजेंसी के एहलकार की फायरिंग, एक और शख्स जख्मी। एहलकार ने वेनेजुएला के शहरी को टांग पर गोली मारी। लोगों का एहतजाज। इमिग्रेशन एहलकारों से झड़पें। गवर्नर का रियासत में फेडरल ऑपरेशंस खत्म करने का मुतालिबा। मिनियापोलिस में अब तक 2500 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके। अमरीकी इमिग्रेशन ऑफिसर ने गुज़श्ता हफ्ते मिनेसोटा में 3 बच्चों की मां को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। अमरीकी अवाम ने अंधनाक कत्ल पर रियासत के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया। अमरीकी सदर की मिनेसोटा में
फौज तैनात करने की धमकी।